Welcome, Fox. So now we are starting off with chapter 13th, and I hope until now you are well aware about a lot of things because now onwards we will be shifting our gaze toward Mauryan Empire. But before that, we will again discuss about the Varna system, like how the society was and all the stuff. But literally, the things that you had studied till now, these are the very basics of the ancient history. Like, if you are good enough with that thing, then halfway you are done with your ancient history. So basically, I want it to be very much clear in your head that all those things that we had studied till now are very important. If you somewhere feel that you need quick revisions again, just move back, go back and just revise them again and then move further, so that it's not about just completing the course, it's more about completing the syllabus, remembering the syllabus, because at the end, no one is going to ask you whether you had completed your courses, whether you had completed those books or not. Everyone will see the result that will be delivered after you attempt the prelim examination, and the results will be determined on the basis of your retention. So it's important that your basics should have to be clear. So if in case you feel somewhere like you need revisions again, just revise it again and then move forward right now. But we are going to start off with chapter 13, so let's get started. So this chapter 13, is again state and Varna society in the age of Buddha. Because until now, if we are talking about age of Buddha, then I want your reply that when Buddha was born and in which century we can conclude that if we are talking about age of Buddha, then which century it was. I want your take on this because you had watched earlier video, you do know about the Buddha part, like Buddhism and all we had discussed, right? So it's up to you that you must remember what we are talking right now, at which time frame we are talking right now. So please write it down in the comment box. I want to see how many among you actually can recall when Buddha was born and which time duration it was. So basically in this chapter, we are going to discuss about how the society was at that point of time. While discussing about Buddhism and Jainism, we understood that the Buddhism and Jainism, all these got into prominence just because of the Varna system that was prevalent in society, and they were questioning the Varna system. Buddhism particularly questioned the Varna system, because of which people get more inclination toward that Buddhism part. So now let's understand what was the condition and all. So firstly, when we are going to discuss about this, then first step comes 6th century. So 6th century BC marks beginning of northern black polished ware. These are the pottery, type of pottery, because try to understand, I again and again say same thing, that pottery itself shows the importance of the pots and all these things in your life. Along with that, this itself shows how society was evolving, what was the lifestyle of people that were at that point of time. So pottery is very important source to let us know about their lifestyle. So 6th century BC marks beginning of NBPW. So basically, Buddha was born in 567 BC. So I had revealed it myself, but still I believe you had answered the question in the comment box, right? So it's important. So this whole pottery itself was in a way, like these wares were in a way that were very glossy and shining, and this was the time, that was the time when metal money was coming into prominence. Why? Because until, like, at that point of time, people were having all sort of information about coppers and iron and all. Although like all other things, gold, silver, everything was prevalent at that point of time, so people were aware of those things. So that's why metal money was coming into prominence, because right now, after agriculture and after trade and all, they were not making like barter system doesn't make so much sense. So somehow whenever there is any necessity, then we go on for invention, discoveries and all. So that's how people get started off with the metal money. Then come, at that point of time, at that society, use of burnt brick and ring walls were there. तो basically we do know, right, कि पहले से ही multiple stories and all those things कि bricks, burnt bricks and all start हो गया था, तो वो और ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा था. तो दिस टाइम शोज सेकेंड अर्बनाइजेशन, बिकॉज फर्स्ट अर्बनाइजेशन का हम अगर फेज बोले वो कौन सा था, हरप्पन सिविलाइजेशन. सो नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन अगेन new form of urbanization was coming into prominence. So we had also find the mention of 7-story palace, another सात मंजिला. That itself shows the brilliance of people, the architects, that they were able to understand geometry and all. Look, when we will be discussing about all those creature and like temples and all, then we will be feeling amazed by the way people were aware of
द थिंग्स लाइक कि किस तरह से उन्हें मंदिर बनाने हैं, टेम्पल्स बनाने हैं एंड ऑल। और जब हम जैसे आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें भी कोई सीमेंट एंड ऑल ये इस तरह की कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी है, वो ब्लॉक्स को मतलब जो ब्लॉक्स हैं उनको ही इंटरलिंक करके वो बिना एडहेसिव मटेरियल के वो बना है। तो वैसे ही ऑलरेडी पिछले टाइम में भी ऐसे सारे के सारे बहुत सारे हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि इस तरह से उन्होंने टेम्पल्स मेकअप किए थे। तो दैट शोज द ब्रिलियंस ऑफ पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही दिखता है कि 7 स्टोरी बिल्डिंग्स बनी थी, सो दैट मीन्स दे वर नोइंग अबाउट आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स एंड ऑल। So both artisan and merchants live in fixed localities in town, जिसे गिल्ड सिस्टम बोलते हैं ना। तो वो गिल्ड सिस्टम स्टार्ट हो गया था बिकॉज दे वर बिकमिंग मोर प्रोफेशनल इन दैट सेंस। सो व्हेन प्रोफेशनलिज्म कम्स तो नेगोशिएशन पावर इंक्रीज करने के लिए गिल्ड सिस्टम बन जाता है। और जैसे हम लोग कॉपरेटिव्स एंड ऑल बनाते हैं, सो व्हेन आई विल बी डूइंग लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम मूविंग समथिंग लाइक मैं कोई भी कढ़ाई या कुछ भी करती हूँ, तो अगर मेरे से आपको नेगोशिएशन करना है तो डेफिनेटली मेरे पास इतना से नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट एंड ऑल, तो आप हमेशा बेनिफिशियल पोजीशन पे रहोगे। बट व्हेन वी विल बी ऑर्गेनाइज तो हमारी डिमांड सुनी जाएगी, मतलब जब हम काफी लोग ग्रुप में हैं तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और वो सिक्योरिटी भी रहता है। तो इसलिए गिल्ड सिस्टम वॉज बिल्डिंग अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट्स developed on account of guild system as well as localization. And one more thing that contributed toward this specialization was Varna system. Varna system के accordingly, if I am not able to move out of my Varna or I am not entitled to do whatever I wish to do, but I am compelled to do whatever my Varna ask me to do or Varna have capability to do, तो definitely मैं उसी चीज में specialization करूंगी। और Varna system का जो एक argument दिया जाता है कि why Varna system was introduced, तो उसमें यही था कि if you will be categorized and if certain task will be categorized to certain people or certain group of people, तो उसमें उनकी specialization हो जाएगी। तो because of that specialization they will be more into like making things better, उसमें बहुत सारी improvements हो जाएंगी। So that's how Varna system got introduced. So crafts were hereditary because Varna system था, तो definitely जो मैं काम कर रही हूँ वही मेरे बच्चे काम करेंगे, वही उनके बच्चे काम करेंगे। So that's how Varna system बहुत rigid था। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills हैं, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So traders were facilitated by use of money because that's why like metal money का usage बढ़ गया था, because until and unless you don't have money तो trade करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So term Nishka and Satmana in Vedic text are taken to be name of coins, and then comes coins made of metal appears first in the age of Gautam Buddha. ओके, सो अर्लियर लार्जली जो थे वो सिल्वर के थे, और फिर वो मेटल्स मतलब जैसे ये कॉपर्स एंड ऑल के स्टार्ट हो गए थे। एंड जो देखो स्टार्टिंग में हमें कॉइन्स मिले थे ना, जैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो तो वहां पे भी हमें कुछ कल्ट मतलब उनसे ही हमने आइडिया लगाया था, राइट? अगर आपको याद हो हड़प्पन सिविलाइजेशन की वीडियो, कि उसमें से हमने आइडिया लगाया था कि किस जो लोग थे उस समय के वो किस तरह से जो पर्टिकुलर कल्ट्स को बिलोंग करते होंगे, और वो उनके कल्ट के सिंबल होंगे, जैसे बुल हो जाएगा, राइनो हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग के कॉइन्स थे punched with certain marks जैसे हिल, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट एंड ऑल, तो उनमें भी शुरू में जो कॉइन सिस्टम था उसमें बेसिकली इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस था कि ऐसे कुछ हिल एंड ऑल ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते थे। मगर हड़प्पन कल्चर के बाद, आफ्टर एंड ऑफ हड़प्पन कल्चर, राइटिंग प्रोबेबली स्टार्टेड कपल ऑफ सेंचुरीज बिफोर अशोका। राइटिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था, मगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट था या जो उनका लिखने का तरीका था, दैट वर मोर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स एंड ऑल ना। तो वो चीज बोला जा रहा है कि आफ्टर एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वो चीजें स्टार्ट हो गई थी, और अशोकन टाइम से बहुत पहले, कुछ देर पहले से वो चल रहा था।
क्योंकि अशोकन टाइम में, क्यों उसका अशोकन टाइम का रेफरेंस दिया जा रहा है, बिकॉज अशोकन टाइम में इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल हमें मिलती हैं, सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू इट टू बी वेरी मच क्लियर कि वो अर्लीस्ट शुरू हो गया था। अब कॉइन सिस्टम्स में जो ये इन्वेडर्स इंडिया में आ रहे थे, तो उनके जो कॉइन्स वगैरह होते थे, दैट शोज देयर नेम और देयर पिक्चर एंड ऑल, तो वहां से भी इन्हें थोड़ा इन्फ्लुएंस मिला कि अच्छा हमें भी अपने कॉइन्स के ऊपर ऐसे ऐसे करना चाहिए, सो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो, राइट। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इन्वेडर्स इंडिया में आए थे उनका इन्फ्लुएंस भी इंडियन जो चीजें हैं पॉलिटी एंड ऑल, उन चीजों पे बहुत असर पड़ा है। और फिर ये हमें पता है, राइट, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सुलवा सूत्र, जो हमने सूत्र पढ़े थे जब हम वैदिक टाइम्स पढ़ रहे थे, कि सुलवा सूत्र में बेसिकली वो पूरे डिटेल्स हैं जिसमें कि बताया जाता है कि मेजरमेंट कैसे करना है, ज्योमेट्री वाला कुछ कुछ पार्ट इसमें आता है। देन क्योंकि वी आर डिस्कसिंग मोर अबाउट द पीपल और द स्टेट व्हेन like during the Gautam Buddha period, so Pali text speak of 3 types of villages. अब Pali text क्यों बोला, क्योंकि वहां पे नॉर्मली लोग Pali text यूज कर रहे थे, और दैट्स व्हाई व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट गौतम बुद्ध, तो मतलब या बुद्धिज्म का लिटरेचर, दैट वाज रिटन इन पाली, राइट। सो इन अकॉर्डिंग टू पाली टेक्स्ट टिपिकल 3 टाइप ऑफ विलेजेस वर देयर, राइट। फर्स्ट विलेज जो था टिपिकल विलेज इनहेबिटेड बाय वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज, जिसे हेड किया जाता था भुजक्का के द्वारा। जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से हो रहा था, या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किंग किस तरह से कर रहे थे, तो वो सब चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। बट राइट अंडरस्टैंड 3 टाइप ऑफ विलेजेस का वहां पे रेफरेंस दिया जाता है। फर्स्ट जिन्हें की हेड किया जा रहा था भुजक्का के द्वारा, दूसरे थे सब अर्बन विलेजेस, जिसमें कि जो क्राफ्ट विलेजेस के हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो कोई वीवर्स है तो वो वीवर्स का गाँव हो गया, तो वो उस तरह से वो सेग्रीगेशन था। सो दूसरा सबअर्बन उस तरह का, और तीसरा कौन सा था, बॉर्डर विलेज सिचुएटेड ऑन लिमिट ऑफ कंट्री साइड विच मर्ज्ड इनटू फॉरेस्ट, कि जो फिर फॉरेस्ट में मर्ज होता जा रहा था। तो इस तरह से 3 टाइप की कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी व्हेन इट कम्स टू विलेजेस, जो पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। देन विलेज लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू कल्टिवल plots and allotted family wise, because at that point of time people were into agriculture, और हमें पता है कि जो किंग था उसका मेन रेवेन्यू सोर्स भी जो आ रहा था वो एग्रीकल्चर या लैंड से आ रहा था। सो डेफिनेटली वो लैंड को ऐसे वेस्ट के लिए तो नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए जो लैंड था उसे डिवाइड किया गया था कल्टिवेबल लैंड में, और फिर वो फैमिली वाइज उन्हें दिया जाता था कि आप जैसे शूद्र वगैरह थे वो बेसिकली या स्लेव्स होते थे, वो काम करते थे ऑन ग्राउंड, मतलब जो एग्रीकल्चर में प्लॉइंग एंड ऑल करना, तो वो सब चीजें होती थी। तो विलेज लैंड्स वर डिवाइडेड लाइक दैट। पीजेंट्स हैड टू पे 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड टैक्स, तो यहाँ पे जो टैक्स था वो 1/6 था, और टैक्सेस कलेक्टेड बाय रॉयल एजेंट एंड नो इंटरमीडिएट लैंडलॉर्ड, इंटरमीडिएट्स नहीं थे। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मगर जब हम मुगल एम्पायर में आएंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो ये टैक्सेस थे वो कितने इंक्रीज हो गए थे, मिडिल मैन इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर जब हम ब्रिटिश टाइम पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तब हम और अच्छे से समझेंगे कि जो मिडिल मैन थे वो किस तरह से आए थे, जमींदारी सिस्टम एंड ऑल। तो इसलिए तब की चीज समझने के लिए पहले एंशिएंट समझना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले हम किस बेस पॉइंट से कहां तक पहुंचे हैं। सो बट लेट इट बी, फिलहाल के लिए ये जरूरी है कि बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे उन्हें गहपतीस बोलते थे, और किंग्स रूल्ड विद हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, क्योंकि देखो अगर आपको इतना बड़ा एम्पायर हैंडल करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल्स चाहिए, तो वो डिफरेंट रैंक्स पे होते थे। जो हायर रैंक्स पे होते थे उन्हें महामंत्रीज बोला जाता था। और अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड्स ऑफ विलेज हेडमैन, जिसे कि ग्रामिनी बोला जाता था, विच मीन्स लीडर ऑफ ग्राम। बेसिकली आज भी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हमारी पॉलिटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास है, तो उसे ग्राम बोला जाता है, ग्राम सभा होती है, राइट। और अगर आप नोटिस करोगे तो सभा हम लोगों ने वैदिक टाइम में भी पढ़ा था, तो ग्राम सभा, तो वहां से ही वो चीज निकल के आती है। तो अगर हम रूरल, जैसे हमने किंग की बात करी, तो डेफिनेटली उनके पास हायर एंड लोअर ऑफिशियल्स होते थे। जो हायर ऑफिशियल्स थे उन्हें महामंत्रीज बोल रहे थे, और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो उन्हें जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, ग्रामिनी। सो लार्ज, और जो उस समय के एम्पायर था उसमें जो किंग होते थे वो आर्मीज, लार्ज प्रोफेशनल आर्मीज रखते थे। प्रोफेशनल आर्मीज के बिना, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ वेस्ट की अगर हम फ्रंटियर की बात करें तो वहां पे बहुत टर्बुलेंस रहा है, इन्वेडर्स आए हैं, आपस में लड़ते रहते थे हम लोग, तो डेफिनेटली हमें आर्मी चाहिए थी। और मौर्यन एम्पायर की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उनकी बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छी आर्मी थी, जिसकी वजह से वो लगभग पूरे इंडिया को कैप्चर करके रख पाए थे, यूनाइट करके रख पाए थे। सो बलि जो था, जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वैदिक एज में, तो बलि तब वॉलंटरी था अर्ली वैदिक एज में, बट अभी तक वो
प्रॉपर एक कंपल्शन हो गया था। तो बलि अ वॉलंटरी payment made by tribesmen to their chief in Vedic times become compulsory payment to be made by peasant in age of Buddha, and officers called Bali Sadhakas were appointed to collect it. जो बलि वाले ऑफिशियल्स होते थे वो उसको कलेक्ट करते थे। तो जो पेमेंट होता था वो बहुत कैश में भी हो सकता था, इन काइंड भी हो सकता था। कैश में क्यों हो सकता था? क्योंकि अब पंच कॉइन्स जो थे वो सारे यूज में आ गए थे। कॉइन सिस्टम होने के कारण अगर आपको अपना टैक्स पे करना है या आपको कोई पेमेंट करना है तो वो पेमेंट और क्या होगा, टैक्स पे, राइट। तो गवर्नमेंट के लिए और आपस में जब हमें कोई पेमेंट करना है एज ए इंडिविजुअल तो वो हम लोग कॉइन्स में भी कर सकते थे और बार्टर सिस्टम भी अगर करना चाहें तो कर सकते थे। और फिर दूसरी चीज आती है टोल, जिससे हम आज बहुत परेशान हैं। रोड पे टोल्स ही टोल्स हैं। तो यहाँ पे भी जो टोल्स थे, टोल्स वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स कॉल्ड शॉलकी का। अब बेसिकली फिर वही पॉइंट आ रहा है कि अब अर्बन, इसे सेकंड सॉर्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब जो भी चीज हो रही थी वो बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट से हो रही थी। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोल सकते हैं। तो सेकंड सॉर्ट ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई थी बेसिकली फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर। मतलब अगर हम उस मौर्यन एम्पायर की बात करें तो वो बहुत अच्छे से मैनेज्ड था और वैसे भी 6th सेंचुरी बीसी से वो स्टार्ट हो चुका था। सो इन रिपब्लिक्स रियल पावर वाज इन हैंड्स ऑफ ट्राइबल, बट इन रिपब्लिक्स ऑफ मालवाज और क्षत्रियज एंड ब्राह्मणा वर गिवन सिटीजनशिप्स बट स्लेव्स एंड हायर्ड लेबर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ कि सिटीजनशिप शूद्रास को नहीं मिल रही थी ना स्लेव्स को मिल रही थी। और अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है तो उसका क्या नुकसान होगा? आपके पास कोई राइट्स नहीं है। आपकी कितनी भी बुरी पैथेटिक कंडीशन में आपको रखा जाए, आपको रहना पड़ेगा एंड नो वन विल हेयर योर प्रॉब्लम्स, नो वन विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स। तो ये सिचुएशन थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी की अगर हम बात करें तो राजा था, उपराजा, सेनापति, बंदीगारिका। तो बेसिकली वही पॉइंट आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी वो भी बहुत प्रॉपरली सटल वे में सेटल्ड थी। देन सर्टेन स्टेट्स इन एज ऑफ बुद्धा वर नॉट रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग बट बाय पर्सन्स हु वर रिस्पॉन्सिबल टू असेंबलीज। ये भी चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। नॉर्मली ऐसा हो गया था कि जो पोजीशन थी, किंग की पोजीशन थी, हमने पहले डिस्कस किया, वो हेरिडिटरी हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो मगर कुछ जगह आज भी ऐसी थी जहां पे ऑल्दो वो हेरिडिटरी थी मगर फिर भी मतलब कुछ जगहों पे वो हेरिडिटरी के तौर पे नहीं चल रही थी। जो ज्यादा कैपेबल इंसान होता था उसे वो चीज या उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी। Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. The difference between monarchy and republic lay in fact that later functioned under leadership of oligarchy assembly and not of individual as was the case with former. सो बेसिक डिफरेंस क्या है अगर हम मोनार्की और रिपब्लिक की बात करें? अब देखो, अगर हम लोग कोई एम्पायर की बात कर रहे हैं तो वो एम्पायर्स बेसिकली काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थे। मतलब जो किंग था उनके हाथ में ज्यादा पावर सेंट्रलाइज थी और वो डेफिनेटली इधर उधर अपनी पावर्स, डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिशियल्स वर देयर, बहुत प्रोफेशनली क्यूरेटेड सब कुछ सेटलमेंट किया। बट एनी हाउ जो पूरी की पूरी अथॉरिटी थी, पूरी की पूरी पावर की सेंट्रलाइजेशन थी, वो किंग के पास ही थी। तो ये सब दिखाता है कि लाइक पीपल वर मोर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि मतलब किंग वाज मोर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और दूसरा चीज है कि स्लेव्स वगैरह को, शूद्रास को सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। And then there are a lot of other things that we had discussed about, like बलि वॉलंटरी ना हो के एक परमानेंट बन गया था, कि परमानेंट एक कल्चर बन गया था that you have to give it to the people or the brahmanas. And second कि जो टैक्सेस थे 1/6 टैक्स लग रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारी और हमने डिफरेंट चीजें इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस की हैं कि पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस कौन से थे। और फिर हमने देखा कि जैसे जो ये 6th सेंचुरी से अगर हम बात करें, सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज स्टार्टेड and coin systems were also evolving because earlier metal coins were not there, मतलब silver coins वही थे, copper coins and all नहीं थे। तो अब वो भी सब चीजें स्टार्ट हो गई थी और जो गिल्ड सिस्टम था वो भी स्टार्ट हो गया था। एंड डेफिनेटली जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ
हमें पोट्री मिलती है दैट नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वो भी हमें मिले हैं आफ्टर 6th century. So that was it for this particular chapter. In this chapter basically we had understood what were the condition of state and how Varna system or Varna society was make up or made up at the age of Buddha. So this was it for this particular chapter. I hope you learned a lot of things in this particular chapter, and if you have any doubt, just let me know by writing in the comment box below. I will love to answer your doubts, and definitely guys, don't forget to write summary in the comment box. I will see that summary and I will revert back to it for sure. So thank you so much guys for this session, and I will see you in the next session. Till then, bye bye guys.